Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss our first poem, that is The Road Not Taken, which is written by Robert Frost, who was an English poet. Now this poem has been written by Robert Frost as he faced the dilemma in his life whether he should stay in his own country or should go into foreign country, because in his own country his poetry was being rejected by the people. They did not like to read the poetry written by him. All the publishers at that time rejected his poetry to publish. Now, because of that reason, he thought that he should go to abroad, and as per his second choice, he thought that he should stay there in his own country. So on basis of that dilemma, on basis of that confusion, he wrote that poem, The Road Not Taken. Here you are watching on the screen, the one road is going on, and by reaching at that place, the two roads start to divide. दो रोड बटना शुरू हो जाते हैं. One is the road on which a person may be there in form of a doctor, and second road may lead to that person to be an engineer. यानी एक रोड तो जो है उस व्यक्ति को, उस बच्चे को डॉक्टर बना सकता है और दूसरा इंजीनियर. Now this stage come in that class after passing 10th class, when the child goes in 10th class, 11th class. At that time he faces such type of dilemma, such type of confusion. Sometimes he thinks that he should be a doctor, sometimes he thinks that he should be an engineer. So that type of confusion is there in the child mind. So same type of confusion was there in Frost's mind at that time when he wrote that poetry. जब उसने ये पोएट्री लिखी तो उस वक्त ऐसा ही कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में था. द पोएम इज़ रिलेवेंट टू आवर लाइफ. ये पोएम जो है हमारे दैनिक लाइफ से जुड़ी हुई है. द पोएट सेज दैट ही वाज फेस्ड विद द ऑप्शन ऑफ टू पाथ इन द वुड्स. और पोएट ये बताता है कि वो जो है उसने एक बार झेलना पड़ा दो रोड की चॉइस के बीच में, सिलेक्शन के बीच में, कि विच टाइप ऑफ सिलेक्शन शुड बी डन बाय हिम इन सिचुएशन ऑफ टू रोड विच वर देयर इन फ्रंट ऑफ हिम. दिस इज सिमिलर टू द कैरियर ऑप्शन वी हैव इन लाइफ एंड चूज वन आउट ऑफ देम. और जो हमारा करियर ऑप्शन है उसमें से हम दो में से एक को चूज करते हैं. सो एट दैट टाइम वी हैव लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन आवर माइंड. वी थिंक दैट whether that option to which we are going to opt, whether that will be beneficial for us or not. That type of confusion is there in our mind. यानी उस समय हमारे दिमाग पर बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत तनाव होता है कि जो करियर मैं अपनाने जा रहा हूँ कि वो उस करियर में, उस सिलेक्शन में मैं कामयाब हो पाऊँगा कि नहीं, उस चॉइस के सिलेक्शन में. इंट्रोडक्शन टू द पोएम. इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट अ चॉइस ही हैज़ टू मेक बिटवीन टू रोड्स. इस पोएम में पोएट बताता है कि उसने दो रोड की चॉइस के सिलेक्शन के बारे में जो है बहुत समस्या फेस करनी पड़ी. The road is compared to the different career option we face in our life and have to choose anyone. ये रोड जो है, it is a symbol, ये एक सिंबल है
किसके बारे में? अबाउट द चॉइसेस, अबाउट द ऑप्शन अ पर्सन हैज़ इन हिज लाइफ। ये उस बात का संकेत है जो व्यक्ति के क्या नाम है, जीवन में डिफरेंट चॉइसेस जब होते हैं तो एक रोड से दो रोड फटना, ये उस बात की तरफ इशारा करता है कि आदमी के सामने जब दो ऑप्शन होते हैं तो उनमें से किस ऑप्शन को वो सिलेक्ट करे। ये स्थिति वैसी होती है जैसे कि एक व्यक्ति दो रास्तों के मुहाने पर खड़ा होता है और उस समय जो उसकी स्थिति होती है वैसी स्थिति आदमी के जीवन में भी होती है जब दो ऑप्शन उसके सामने होते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। Two roads diverge in yellow wood. You are watching here, the poet is standing on that place from where the one road divided into two. पोइट वहाँ खड़ा है जहाँ एक रास्ता दो रास्तों में बट रहा था। टू रोड डाइवर्ज, डाइवर्ज मीन्स गो सेपरेट वे, मीन्स डिवाइडेड। दो रोड जो है वो बढ़ते हैं इन येलो वुड। येलो वुड, वुड मीन जंगल, एंड वुड इज येलो बिकॉज देर वॉज ऑटम सीजन, पतझड़ ऋतु थी, एंड इन ऑटम सीजन द कलर ऑफ द लीव्स बिकम येलो, एंड ड्यू टू दैट रीजन सम ऑफ द लीव्स which have fallen from the trees and which were there on the ground, because of the presence of yellow leaves, all of the ground seemed yellow, all of the forest seemed yellow. वो पीली पत्तियों के कारण कुछ पेड़ों पर थी, कुछ नीचे थी, वो पूरा जंगल जो है वो पीला पीला दिखाई देता था। तो दो रोड फटते हैं येलो फॉरेस्ट के पास। एंड सॉरी आई couldn't travel both. Here narrative style of the poet is there. He use I और we का frequent use होता है narrative style में, यानी वर्णात्मक शैली में। और वो माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ करें क्योंकि मैं दोनों रोड पर एक साथ एक समय में नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, यानी काफ़ी लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते की तरफ मैं देखता रहा जब तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, एंड आई kept my watching on that path till that place where it bent and where it had the presence of undergrowth. Undergrowth means dense growth of trees, यानी छोटे छोटे पौधे जो है उगाए थे उस रोड पर। कहता है कि मैं उस रोड को टकटकी लगाए देखता रहा, कहाँ तक? वहाँ तक जहाँ इस रोड के अंदर बैंड मीन्स मोड़, जहाँ तक ये स्ट्रेट था, सीधा था, वहाँ तक देखता रहा। लेकिन फिर इसमें बैंड आया, एक मोड़ आया, और उस मोड़ के ऊपर जो है अंडरग्रोथ मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटी छोटी पौधे, पेड़ पौधे भी उगे हुए थे। तो वहाँ से आगे मैं इस रोड को नहीं देख पाया। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता देखा। एज जस्ट एज फेयर, वो रास्ता भी ऐसा ही साफ सुंदर था जितना कि पहले वाला था। तो दोनों रास्ते एक जैसे दिखाई दिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। Now this word perhaps has been used
It is showing the possibility. The poet was not confirmed about the selection of his choice. यानी जो चॉइस में सिलेक्शन करता है, चुनाव करता है, उस चुनाव में वो कंफर्म नहीं है, यानी उसे पूरा विश्वास नहीं है कि जिस रास्ते को, जिस रोड को वो अडॉप्ट करने जा रहा है कि वो सही है भी या नहीं. हैविंग प्रेस द बेटर क्लेम, कहता है शायद ये रोड जो है वो सही सिलेक्शन हो. मे बी ही चोज द बेटर पाथ, शायद वो सही रास्ता चुनने जा रहा था. बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो जो रोड जिसको वो चुनने जा रहा था वो ग्रासी था, घास उगी हुई थी. एंड वांटेड वियर, और उसके ऊपर जो है आने जाने वालों की जो है वो अभी डिमांड थी, यानी बहुत कम लोग उस पर गए थे. दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और थोड़े बहुत जो लोग उस पर गए थे उस रास्ते पर, उन लोगों ने जो है इस रोड पर जो पत्तियां गिरी हुई थी उन पत्तियों को डैमेज कर दिया था, वॉर्न कर दिया था, उसी रोड की तरह जैसे कि पहले वाला था. सो हियर पोएट इज देयर इन कंफ्यूजिंग स्टेज. ही फाउंड बोथ ऑफ द रोड इक्वली इन फ्रंट ऑफ हिम इन इक्वल सिचुएशन. दोनों रोड को वो एक जैसी स्थिति में पाता है. तो यहाँ कन्फ्यूजन में है पोएट कि विच रोड ही शुड अडॉप्ट. तो यहाँ पर जो है ये सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक सिचुएशन है, सांकेतिक परिस्थिति है, क्योंकि एक तरफ उसके अपने देश में जाने वाला रोड और दूसरी तरफ विदेश जाने वाला रोड. सो ही वॉज इन कन्फ्यूजन वेदर ही शुड अडॉप्ट द रोad which was leading towards his own country, and second whether he should adopt that road which was going to foreign country, जो विदेश में जा रहा था, क्या वो उस रोड को चुने या जो अपने देश में जा रहा था उस रोड को चुने. सो both of the path seem to the poet as equally in equal situation. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही रास्ते, दोनों ही रोड जो है उसके सामने मौजूद थे सुबह सुबह. इन लीव्स नो स्टेप एट रोडन ब्लैक, और सुबह के समय, रात के समय जो पत्तियां गिरी थी वो बिल्कुल ताज़ी थी, फ्रेश थी, और किसी व्यक्ति के पाँव के निशानों के कारण कोई भी पत्ती जो है वो अभी ब्लैक नहीं हुई थी. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. नाउ पोएट सेज दैट आई थिंक दैट आई शुड कीप द फर्स्ट रोड फॉर एनी अदर डे. कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले रोड को तो आगे आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए छोड़ दूं, ताकि मैं इस फर्स्ट रोड पर फिर भविष्य में चलूं. Yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए कि कैसे रोड जो है, कैसे सड़क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक रोड दूसरे रोड को कैसे लीड करता है. I doubted if I should ever come back. मुझे ये भी शक था कि मैं कभी वापस पहले रोड को छोड़कर, जो जिसको रोड को छोड़कर जा रहा हूँ, वापस उस रोड पर कभी आऊँगा या नहीं. That type of confusion was there in poet mind, whether he would be able to come on that path to which he was going to live on that day. उसके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि वो उस रास्ते पर पहुँच पाएगा, वापस नहीं पहुँच पाएगा या नहीं, जिस रास्ते को वो आज छोड़ने जा रहा था. तो ये वास्तव में
असंभव बात होती है, बिकॉज वट एवर द रोड वी सिलेक्ट, जो भी रोड हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम इस रोड पर भी जो है चलते आएंगे कभी भविष्य में, चल पाएंगे कभी भविष्य में। क्यों, कैसे? सपोज वी सिलेक्ट द पाथ टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने का रास्ता अगर हमने चुन लिया और डॉक्टर हम बन गए, एंड देन वी स्टार्ट टू थिंक दैट आई शुड बी एन इंजीनियर, कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए था, डॉक्टर नहीं, देन दैट पाथ ऑफ बीइंग एन इंजीनियर विल बी इम्पॉसिबल फॉर दैट चाइल्ड, फॉर दैट पर्सन इन फ्यूचर। तो उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए वो इंजीनियर बनने का जो रास्ता है वो असंभव हो जाता है। तो एक रोड पर चलने के बाद जब दूसरा रोड छोड़ देते हैं हम, तो उस रोड पर कभी हमारा मौका लगे या ना लगे भविष्य में चलने का। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई मीन्स लॉन्ग ब्रीथ। कहता मैं ये बात, ये कहानी, ये घटना, यानी दो रोड की जो घटना है, इसको मैं भविष्य में, साई मीन्स लंबी सांस लेते हुए, बताता हुआ मिलूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, हैंस मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी परिणाम स्वरूप मैं बहुत सालों बाद ये बात किसी को लंबी सांस लेते हुए, रात की सांस लेते हुए भविष्य में कभी मिलूँगा। टू रोड डाइवर्स इन येलो वुड, दो रोड जो है वो पड़ते थे येलो वुड में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और उन दोनों रोड में, उन दोनों रास्तों में मैंने उस रास्ते को चुना जो लेस ट्रेवल था, जिसके ऊपर कम व्यक्ति गए थे। क्यों? बिकॉज दैट path was the path of spiritualism. Here, two contradictory situations are there in poet mind. What were those contradictory situations? वो स्थिति थी विरोधाभासी है, एक तरफ था स्पिरिचुअलिज्म और एक तरफ था मैटेरियलिज्म, यानी एक तरफ भौतिकवाद, एक तरफ आध्यात्मिकवाद, एक तरफ रुपए, पैसे, गाड़ी, बंगले, नौकर, और दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता, जिसमें जो है एक साधु का लाइफ जीने के लिए मिलता है। तो ये दोनों रास्तों में से उसने कौन सा रोड चुनना था, ये उसके लिए सामने समस्या थी। और कहता है कि मैंने वो रोड चुना, कौन सा रोड? टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक व्यक्ति बनने का। कहता है मैंने वो रोड चुना जिसके ऊपर कम लोग गए थे, क्योंकि जो पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्मिकवाद का जो रास्ता है, आध्यात्मिकता का, वो बहुत कठिन होता है, उस पर कम ही लोग जाते हैं। तो कहता है मैंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग गए थे। मीन्स आई टुक द पाथ ऑफ अदर कंट्री, मैंने दूसरे देश में जाने का रास्ता अपनाया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी कारण ये सब डिफरेंस पैदा हुए, यानी इसी घटना ने मेरे अंदर डिफरेंस पैदा किए, अंतर पैदा किए। और वो डिफरेंस क्या हो सकता है? दैट डिफरेंस में बी द डिफरेंस of language, difference of food items, difference of fashion of clothes, like that way. Now summary, the poet was walking down the woods. Poet जो है वो जंगल से गुजर रहा था। when he faced the option of two different paths, जब उसने दो भिन्न भिन्न रास्तों को चुनने का जो है स्ट्रेस उसके दिमाग में आया, तनाव आया। he could not walk down both
दोनों रास्तों पर वो चल नहीं सकता था। ही इंस्पेक्टेड द पाथ, उसने रास्तों को, दोनों रास्तों को जो है इंस्पेक्ट किया, जांचा पड़ताल की। टिल व्हेन इट वाज विजिबल अंडर द डेंस ट्रीज टू डिटरमाइन विच वन वाज बेटर, यानी वहाँ तक दोनों रास्तों को देखा जहाँ तक वो रास्ते सीधे थे, स्ट्रेट थे, जब तक उनमें कोई बैंड नहीं था, मोड़ नहीं था। फाइनली ही टुक द अदर पाथ, और आखिर में उसने दूसरा रास्ता अपनाया, पहले रास्ते को फिर कभी आने के सोच के साथ। एंड आफ्टर वॉकिंग अ फ्यू स्टेप, कुछ स्टेप चलने के बाद, he realized that both the path were similar, यानी कुछ दूरी पर जाने के बाद उसने महसूस किया कि दोनों ही रास्ते एक जैसे थे। एंड दिस वन वाज आल्सो worn आउट, और ये रास्ता भी जो है कुछ लोगों के द्वारा चला गया था, ग्रहण किया गया था। He realized that his decision of walking down the other path some other day would never materialize, as one path leads to another, more option and further choices and so on। कहता है कि उसका जो ये डिसीजन था दोबारा से उस रास्ते पर कभी आना भविष्य में, जिसको वो आज छोड़कर जा रहा था, ये असंभव सा था, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद आदमी के जीवन में और ज़्यादा चॉइसेस आ जाते हैं, चॉइसेस बढ़ते जाते हैं, जिनका सिलेक्शन उसने भली भांति करना होता है। द प्रिविलेज ऑफ गोइंग बैक टू द प्रीवियसली लेफ्ट पाथ वुड नेवर बी अवेलेबल टू हिम, और ये छोड़ा हुआ रास्ते का जो चांस था, मौका था, वो कभी भी उसके जीवन में अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ही थिंक्स ऑफ द फ्यूचर, वो फ्यूचर के बारे में सोचता है। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, he will say that he walked down the path which seemed to greater and less traveled, और वो कहेगा that he walked down the path, कि वो उस रास्ते पर चला, which seemed greater and less traveled, जो महान था, which seemed greener not greater, जो हरा भरा था, हरा भरा प्रतीत हुआ और कम लोगों द्वारा ग्रहण किया दिखाई दिया। The same page is there. So this was all about the summary and explanation of paragraph wise. Now, during all of the poem, I think you realized too much happiness. Because of that reason, you will be able to understand this poem very well. I hope you will listen it carefully and try to understand. Okay, thank you. Have a nice day.